الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والله يعفو عن كثير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبان اپنی مطلوب کے ساتھ پاک پڑھیں سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ سمجھو گے تو بچ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو بچ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی ابو کی داستان میں، تمہاری داستان تک بھی ابو کی داستان میں. وطن کی فکر کر کے قیامت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر کے قیامت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں. حضرات محترم، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اللہ جلال ارشاد فرما رہا ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم واللہ یعفو عن کثیر. اور تمہیں جو مصیبتیں پہنچی یہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، اور بہتوں کو تو اللہ بھی معاف فرما دیتا. یہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو مصائب و آلام ہم پر مسلط ہیں اور مسلط کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے. چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ یہی اسے معاف فرما دیتا، لیکن جو اجتماعی گناہ ہے، ساموہک گناہ ہے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے بلکہ اسے سزا دیتا ہے اسی دنیا میں. آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا ہی، لیکن اس دنیا میں اللہ اس کو ایسی سزا دیتا ہے کہ تاکہ لوگ اس سے ڈر سے عبرت پکڑے. اور اگر اس کے بعد بھی اگر آدمی عبرت نہ پکڑے تو پھر اسے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اسلام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دینے کا نام. مسلمان دین اور شریعت کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینے کا نام. اپنے من مرضی کی زندگی، خواہشات کی زندگی گزارنے کا نام اسلام نہیں ہے. اگر کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہو، اپنی خواہش کی زندگی گزار رہا ہو، تو پھر اس کو اسلام نہیں، اسے گمراہیت کہیں گے، اسے الحاد کہیں گے، اسے تمرد کہیں گے، اسے سرکشی کہیں گے، اسے جرم کہیں گے، اسے اسلام نہیں کہیں گے. اسلام تو وہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا. اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا
उसके सामने आमन्ना सद्दकना कह करके बारगाह रिसालत और बारगाह नबूवत में हासिल हो जाने का नाम इस्लाम। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ये दरबारी शायर थे, हुजूर की बारगाह में नात पढ़ा करते थे, बड़े ही मुकर्रब थे, बड़े ही करीब थे। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को जिहाद के लिए भेजा और वो दिन था जुमे का। जुमे का दिन था, सुबह के वक्त अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन तमाम लोगों को कि तुम फला जगह जिहाद के लिए चले जाओ। और बाकी लोग तो चले गए, लेकिन अब्दुल्ला इब्न रवाहा जो दरबारी शायर थे, हुजूर की बारगाह में रह रहे थे, उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हमारे पास तो सवारियां मौजूद है, क्यों ना ये हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही हो सकता है उस जिहाद में जाने के बाद शहादत का जाम नसीब हो जाए, हो सकता है अल्लाह के राह में कुर्बान होने का मौका मैसर आ जाए, और ये भी हो सकता है कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, आखिरी जुमा हो। तो क्यों ना हम हुजूर के इब्तिदा में हुजूर के पीछे जुमा की नमाज अदा कर ले, उसके बाद जुमा की नमाज के बाद तेज रफ्तार सवारी में जाकर के सहाबा के साथ हम मिल जाएंगे। ख्याल कोई गलत नहीं था, जुमे की नमाज के ताल्लुक से मसला था कि जुमा की नमाज पढ़ करके जाएंगे, और वो भी मदीने की जमीन, हुजूर की इब्तिदा में नमाज, मस्जिद नबवी की नमाज। तो इस ख्याल से वो ठहर गए, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के खुतबा के लिए जब खड़े हुए तो सफ में देखा कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे अब्दुल्ला इब्न रवाहा किस चीज ने तुम्हें रोक दिया, तुम जिहाद में क्यों नहीं गए? तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हो सकता है जिंदगी की ये आखिरी नमाज हो, आपके इब्तिदा में जिंदगी की आखिरी नमाज हो, पढ़ लेता हूँ, और बाद में मेरे पास तेज सवारियां मौजूद है, मैं जाकर के सहाबा इकराम से मिल जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम जमीन में, पूरी रूए जमीन में जितना भी कुछ है, अगर ये सब कुछ अल्लाह के राह में कुर्बान कर दो तो उन लोगों के मकाम और मर्तबे को तुम हरगिज नहीं पहुंच सकते हो जो सुबह जिहाद के लिए गए। नियत क्या थी कि सरकार के पीछे नमाज पढ़ेंगे, जो जुमे की अफजल तरीन नमाज अदा करने की नियत थी कि इस नमाज को अदा करने के लिए हम रुकेंगे, सरकार के पीछे हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर रूए जमीन में जितना कुछ माल दौलत जवाहरात और सोने और चांदियां और तमाम चीजें, अगर सब कुछ अगर तुम अल्लाह के राह में खर्च कर दो तो उन लोगों के मकाम और मर्तबे तक हरगिज नहीं पहुंच सकते हो जो लोग सुबह जिहाद के लिए गए। अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दे दिया है उस हुक्म की तामील करना यही दीन है, यही इस्लाम है, और यही सब कुछ है। हुक्म दिया था अल्लाह के रसूल ने कि तुम जिहाद में जाओ, लेकिन उन्होंने सहाबी रसूल, उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कम से कम जुमा की नमाज अदा कर लेते, और वो भी जुमा की नमाज की अहमियत और इसकी शान क्या है। उलमा फरमाते हैं कि जुमा की नमाज के सिलसिले में अगर कोई जुमा की नमाज से पहले अगर सफर करता है तो उसको सफर करना दुरुस्त नहीं है, और बाद उलमा फरमाते हैं कि हाँ, अगर जुमा के दिन उसको सफर करना है तो जुमा की नमाज अदा कर ले, उसके बाद सफर करे, जुमा से पहले नहीं है। बाद उलमा फरमाते हैं कि ज़वाल का वक्त जब हो गया है तो फिर उसे सफर करने की जरूरत नहीं है। जब जुमा की अजान हो जाए, जुमा का वक्त हो जाए, नमाज के लिए मुअज्जिन जब पुकार दे जुमा के वक्त, तो फिर तुम भागते हुए मस्जिद की तरफ आओ, दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आओ। हमारा हाल क्या है? खुतबे की देखेंगे घड़ी देख करके, अब खुतबा की अजान होने में 5 मिनट बाकी है, जमात होने में 10 मिनट बाकी है, तब हम घर से निकलते हैं कि खामखा मस्जिद में बैठ करके क्या करेंगे, इतना देर बोर होंगे, इमाम साहब की तकरीर सुन करके क्या फायदा होता है, इसलिए घर ही में बैठे रहें। जब वक्त होगा, जब टाइम हो जाएगा जमात की, तब जा करके 2 रकात की नमाज पढ़ लेंगे। पूरे हफ्ता तो गायब रहते ही हैं, लेकिन जुमा का दिन जब आता है तो जुमा के दिन भी इतनी तौफीक नहीं होती है कि 2-4 घंटे पहले मस्जिद में आए।
आ जाए, कुछ नवाफिल पढ़ ले, कुछ कुरान की तिलावत कर ले, कुछ मसला मसाइल पढ़ ले, कुछ सीख ले, और जब खिताब हो रहा हो तो उसमें कुछ बातें हम सीख ले, हम जान ले। ये भी तौफीक नहीं होती। पूरा हफ्ता तो मस्जिद का हम रुख नहीं करते हैं, मुंह देखने का गवारा नहीं करते हैं, माशाअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और जब हफ्ते में एक दिन मौका भी मिलता है तो उस दिन भी हम इतने गाफिल होते हैं कि अपने काम और धंधे में लगे होते हैं। और जब जमात और खुतबे के अज़ान का वक्त होता है उससे 5-10 मिनट पहले हम घर से निकलते हैं और किसी तरीके से हम जमात में आकर के शरीक होते हैं। यह है हमारा हाल। सहाबाए किराम का हाल ये था। कुछ लोग दूर दराज इलाके से जब मस्जिद नबी में जुमा पढ़ने के लिए आते थे तो सुबह ही आ जाते थे, और जब उन्हें पिछली सफ में जगह मिलती थी तो दूसरे हफ्ता वो क्या करते थे, जुमेरात ही को आ जाते थे। सोचिए कि जुम्मा की कितनी अहमियत थी कि वो जुमेरात ही को जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए आ जाते थे, और अगले सफ में एक दिन मुकम्मल वो इंतजार करते थे, और तब जाकर के उन्हें जुम्मा की नमाज अगली सफ में मिलती थी। हमारे गांव में मस्जिद है, दिन भर हम अपने कारोबार में लगे हुए हैं, नमाज के लिए हमें टाइम नहीं है, और जुम्मे का हफ्ते में एक दिन भी अगर आता है तो हमें कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं मिलता है, कुछ नवाफिल के लिए वक्त नहीं मिलता है, कुछ दीन सीखने के लिए वक्त नहीं मिलता है। फिर उसी तरीके से 5-10 मिनट के लिए हम मस्जिद में आएंगे, किसी तरीके से जुम्मे की नमाज अदा करेंगे और फिर भागेंगे फौरन। इतनी जल्दी होती है कि भीड़ लग जाती है दरवाजे पर, गेट पर। जैसे ही दुआ खत्म हुआ फौरन भागना शुरू। न सुन्नतें पढ़नी है, न सलातो सलाम पढ़ना है, कोई सरोकार नहीं। कौन सा इस्लाम हमारा है, किस इस्लाम पे हम चल रहे हैं? जमात की अहमियत का क्या आलम है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मौके पर देखते हैं कि कुछ लोगों की कमी हो जाती है जमात में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा दिल ये कहता है कि मैं किसी को अपनी जगह पर मुसल्लाए इमामत पर खड़ा कर दूं, और मैं लोगों के घरों पर जाऊं और देखूं कि जमात के वक्त जो घरों में मौजूद है, मेरा दिल करता है कि उस आदमी के समय उसके घर को जलाकर राख कर दूं। आसान हमने समझ लिया, घर पे हम नमाज पढ़ लेते हैं। क्यों घर में नमाज पढ़ लेते हैं? टाइम नहीं मिलता है। नौकरी करने के लिए टाइम है हमारे पास, सुबह निकलेंगे तो शाम को घर लौटेंगे। मजदूरी करने के लिए है हमारे पास टाइम। बारिश हो रही है कि ठंडक पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है, सारा इंतजाम हमारे पास है नौकरी में जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तिजारत करने के लिए, दुकान खोलने के लिए, सारा काम करने के लिए टाइम है हमारे पास। मस्जिद में आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, घर में पढ़ लेते हैं। फर्ज की नमाज मस्जिद में अदा करनी चाहिए। सुन्नतों अपने घर को कब्र ना बनाओ, अपने घर में भी नमाज पढ़ो, लेकिन सुन्नत पढ़ो, नफिल पढ़ो और वाजिबात पढ़ो, लेकिन जब फर्ज पढ़ने की बारी आए तो मस्जिद में आकर के पढ़ो। एक हदीस में आता है, एक हदीस पाक में आता है, ला सलाता लिजारी मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद। मस्जिद का जो पड़ोसी है उसको मस्जिद के अलावा उसकी नमाज नहीं होती है। मस्जिद का जो पड़ोसी है मस्जिद के अलावा उसकी नमाज नहीं होती है। फुक़हाए किराम ने इसकी वईद पर इसको महमूल किया है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी वईद फरमाई है कि मस्जिद हमने क्यों बनाया था? सिर्फ इमाम साहब के लिए, मुअज्जिन साहब के लिए, चंद नमाजियों के लिए जो बूढ़े हैं, जिनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक हैं, उसके लिए मस्जिद बनाई थी। घरों में पढ़ने के लिए, वीरान करने के लिए मस्जिद बनाई थी। खानकाहों में जमात करने के लिए मस्जिदें तामीर की गई थी। खानकाह में हम नमाज पढ़ लेते हैं। खानकाह नमाज के लिए नहीं है, तालीम और तरबियत के लिए है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर से बड़ा खानकाह कौन हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल का जब आखिरी वक्त आता है तो एक तरफ हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पर अपने दस्त मुबारक को रखते हैं, और एक तरफ दूसरे सहाबाए किराम के कंधे को रख करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं। उस बीमारी के आलम में, उस परेशानी के आलम में सहाबाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की कमजोरी इतनी हो गई थी कि पैर जमीन से टकरा करके चल रहे थे कि जमीन पर पैरों के निशान पड़ रहे थे। इतनी कमजोरी है आज हमारे दरमियान। और उसके बाद भी अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि हम अपने खानकाह में नमाज पढ़ेंगे, हम अपने घर में नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कांधे पर हाथ रख करके मस्जिद में आकर के नमाज अदा करते हैं। आज अगर कोई पीर कहता है कि तुम खानकाह में जमात अदा करो, कल बरोज़े महशर अल्लाह के रसूल के सामने उन्हें जवाबदेही होनी पड़ेगी।
खड़ा किया जाएगा उसको अल्लाह के रसूल की बारगाह में। तुमने कौन सा दीन बयान किया था अपने मुरीदों को जो खानकाह में तुम्हारे मुरीद जमात कर रहे थे? कभी कभार अगर हो जाए, वक्त छूट रहा है, उसका मामला अलग है, लेकिन अगर आदमी अगर मुस्तकिल तौर पर अगर इस तरीके से हुक्म दे करके और कहे कि अपने घर में तुम जमात करो, तुम उस जगह जमात करो, तुम फला जगह जमात करो, तो मस्जिद क्यों बनाई थी? वीरान करने के लिए, सिर्फ इमाम के लिए बनाई थी, चंद बूढ़ों के लिए मस्जिद बनाई थी, मदरसे के बच्चों के लिए मस्जिद बनाई थी। हजर के वक्त देखिए आकर के तो सिर्फ चंद बूढ़े और लोग रहते हैं और कुछ नौजवान रहते हैं और मदरसे के बच्चे रहते हैं। अगर मदरसे के बच्चे ना हो तो बिल्कुल खाली खाली लगता है। इज्जत बचाए हुए हैं मदरसे के बच्चे, बाकी चंद लोग बूढ़े लोग हैं यही मस्जिद में आकर के फजर की नमाज अदा करते हैं। अंग्रेजों ने तहकीक की कि जिस तरीके से जुमे में भीड़ होती है, अगर फजर के वक्त इतनी भीड़ हो जाए तो फिर इस्लाम गालिब आ जाएगा, फिर इस्लामी दौर शुरू हो जाएगा, फिर मुसलमानों का गलबा हो जाएगा, फिर पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत और मुसलमानों की हुक्मरानी होगी। इसलिए वहां के पादरियों ने ईसाइयों के पोप ने कहा इसको उनको जागने नहीं देना है, इसको तरह तरह की चीजें इजाद करो, खेल इजाद करो, तमाशे इजाद करो, मोबाइल इजाद करो और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे और दीगर चीजों पे इसको लगाए रखो। 11-12 बजे तक इस कौम के नौजवानों को जगाए रखो और जब फजर का वक्त हो तो इसका बाप भी सोता रहे, इसका बेटा भी सोता रहे, इसकी माँ भी सोती रहे और उसकी बेटी भी सोती रहे। मस्जिदें वीरान पड़ी रहती है, कोई इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वीरान करने के लिए मस्जिद बना, मस्जिदों की बददुआएं लेने के लिए मस्जिद बनाई थी। नमाज अगर नहीं पढ़नी थी तो क्यों मस्जिदों को तामीर किया था? पहले छोटी सी मस्जिद थी, क्या वो सिर्फ हफ्ते में जुमा एक दिन के लिए ये भीड़ इकट्ठा करने के लिए इसलिए इतनी बड़ी मस्जिदें बनाई जाती है? उसके बाद कहते हैं कि तबाही हो रही है, बर्बाद हो रहे हैं, गुनाहों के अड्डे चला रहे हैं और समझते हैं कि अल्लाह की रहमतें नाज़िल होगी। इसी गांव में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे नमाज की अहमियत पर और नमाज की फजीलत पर, और कुछ ऐसे नालायक लोग किस्म के आदमी थे वो कह रहे थे लोगों का काम ही कहने दो। मौलाना मौलवी का काम है कहते हैं कहने रहो, जब मेरा दिल करेगा तब नमाज पढ़ेंगे। बात का है तुम्हारा दिल, जब तुम्हारा दिल करेगा तब नमाज पढ़ोगे। दीन तुम्हारे किसी के बाप की जागीर नहीं है, रसूलुल्लाह के दीन की शरीयत की, अल्लाह उसके फरमादात का नाम है। अपने मन के हिसाब से नहीं, तुम्हारा जब मन करेगा तब नमाज पढ़ोगे, ऐसी नमाज को नमाज नहीं कहते। अल्लाह ने कहा है कि नमाज अदा करो तो नमाज अदा करो, रसूल ने कहा है नमाज अदा करो तो नमाज अदा करो। वो नमाज हकीकत में नमाज है। अपने मन के जब किया हम नमाज पढ़ लिए, जब दिल किया मस्जिद में आ गए, जब दिल किया चले गए, जब दिल किया छोड़ दिए एक हफ्ते के लिए, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के कहने के लिए अब हम रुखसत पे चल रहे हैं, अभी छुट्टी में चल रहे हैं, अभी मौका नहीं मिल रहा है, अभी कारोबार हमारा ज्यादा। सहाबाए किराम के पास काम नहीं था, उनके पास उनके घर नहीं थे, उनकी जिंदगी नहीं थी, उनके कारोबार नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन दीन और इस्लाम को सब पर उन्होंने मुकद्दम रखा था कि दीन असल है, यही बुनियाद है, उसके ताबे होकर के दुनिया की सब चीजें हैं। और अगर दीन से दूर होकर के हमने जिंदगी गुजारी तो ऐसी जिंदगी को जिंदगी नहीं कहते हैं, ऐसी जिंदगी मौत से बदतर की जिंदगी। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमादात के मुताबिक अमल करना यही दीन है, वरना वो दीन नहीं बल्कि इल्हाद है, गुमराही है, फितना है, खुराफात है, यही चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं। अजान होती रहती है चौक पे, चौराहों पर, स्कूल के पास, होटलों पे, पांव की गुंटियों पर बैठ करके और बकवास करते रहते हैं। हुकूमत के लगता है कि सबसे बड़े राजनीतिक का जानने वाले यही लोग हैं। इसी गांव में सबसे बड़े हिंदुस्तान के राजनीतिक लोग पैदा हुए हैं और बाकी लोग जो है वो बेवकूफ है। इतना बड़ा हिंदुस्तान चला रहे हैं, उनको नहीं आता है। यही लोगों को पता है कि राजनीति क्या होती है, सियासत क्या होती है, यही लोगों को पता है। नमाज का ठिकान नहीं है, बैठ करके चौक पर चौराहों पर बकवास कर रहे हैं। 2-4 दिन से नौटंकी वाला यहाँ पर आ गया है, गाना खूब सॉन्ग में पूरे गांव वालों को सुनाता है और वहां पर यही मुस्लिम नौजवान बैठ करके भीड़ होकर के उसका नौटंकी देखते हैं। शर्म नहीं आती है। दूसरे कौम के लोग भी वहां जाते हैं, यही जितने भी लोग आए हैं इसी में से बहुत सारे लोग जाकर के वहां पर भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसकी नौटंकी देखते हैं। एक नौटंकी देखने के लिए रात के वक्त 10-11 बजे जाकर के वहां मुसलमानों की भीड़ लगी रहती है। ऐसा के वक्त आधा घंटा रहता है, क्यों नहीं भीड़ लगती है मस्जिद में? क्या ताल्लुक है हमारा और आपका इस्लाम से? क्या ताल्लुक है हमारा और आपका दीन से?
क्या ताल्लुक है हमारा और आपका इस्लाम से? कभी सोचा है आपने? और उस नोटंकी वाले से आपका क्या ताल्लुक है? उस गुनाह से आपका क्या ताल्लुक है? क्यों बिना बुलाए वहां पर जाते हो? पैसे खर्च करके कुछ लोग फ्री में जाकर के नोटंकी देखे तो मजा आता। दुनिया तबाही की दहलीज पर खड़ी है, हमें कोई फिक्र नहीं है। 70% लोगों के बारे में पता है कि अभी उसका उनके कागजात का ऑनलाइन नहीं हुआ है, लेकिन हमें कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं। पूरे किसको प्रखंड के सदर और सेक्रेटरी और मुहर्रम कमेटी के उन अफराद से भी मैं मुतालबा करता हूं, कुछ खबर है इन लोगों को? अभी सुन रहे 5 तारीख को फिर एक तो 40वां के नाम पर एक मेला और ठेला का इंतजाम कर रहे हैं लोग। कयामत सबके खड़ी है, नोटंकी सूझ रहा है इन लोगों को, नाच और गाना सूझ रहा है इन लोगों को, ढोल और ताशे समझ में आ रहे हैं इन लोगों को। अभी कयामत खड़ी हुई है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में, वो दौर खत्म हो गया, अब जमीन पर उतर गया है। तुम्हारे बर्बादियों के तस्करे अब जमीन पर उतर चुके हैं। तुम्हारे बर्बाद करने के मंसूबे जमीन पर बनाई जा रही है, उसके बाद भी होश में नहीं हो, उसके बाद भी बेहोशी की जिंदगी गुजार रहे हो तुम। उसके बावजूद उन कयामत के मामलात में भी तुम्हें अब ढोल और ताशे सूझ रहे हैं, उसमें और गाने और बजाने सूझ रहे हैं, उसमें भी नौटंकी तुम्हें नजर आ रही है। यह है हमारे हालात। और हम लोग माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अपने आप को समझते हैं कि सबसे सच्चे और पक्के मुसलमान तो हम ही लोग हैं। कौन है हमसे बड़ा पक्का मुसलमान? कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल देगा। बहुत बड़े पाशा हो ना तुम, बहुत बड़े मुत्तकी हो गए तुम। बगदाद उजड़ गया, 20 लाख मुसलमानों में 4 लाख मुसलमान भाग पाए थे हिलाकू के हिलाकत से। बाकी 16 लाख को कहे तेज कर दिया गया था। उन बच्चों पर, उन औरतों पर, छोटे छोटे बच्चों का कसूर क्या था? क्यों मारे गए थे? हिलाकू की हिरासत उस पर क्यों मुसल्लत की गई थी? हमसे ज्यादा परहेजगार थे वो लोग। उस दौर के बुजुर्ग के पास लोग पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि हुजूर देखिए हिलाकू की हिलाकत थे, उसकी फौजें आ रही है, हमें तहबाना कर देगी। उन्होंने अपने मिट्टी का कटोरा था उन्होंने पलट दिया और कहा जाओ बेफिक्र होकर के रहो, बगदाद पर कोई हमला नहीं करेगा। हिलाकू की फौज आती है, ढूंढती रहती है, पूरा शहर गायब हो जाता है, उनके फौजों को दिखाई नहीं पड़ता है। वो बुजुर्ग लोगों को कहते हैं कि अब वाहे रात पर आ जाओ, अब सुधर जाओ, अब अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अब मस्जिदों को आबाद करने लगो। लेकिन वो तो सोचा कि एक तो हमको नुस्खा मिल गया है, पीर साहब तो हमको बचाए देंगे, एक कटोरा तो अल्लाह ने उनको दे दिया है, पलटेंगे पूरा बगदाद गायब हो जाएगा, हिलाकत से हम महफूज हो जाएंगे, हम बच जाएंगे, अब हमको नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? आजकल भी कुछ लोग ऐसे हैं, पीर साहब लोग कहते हैं जो करना है करो, अल्लाह सत्तुल्लाह हम तो तुम्हें बचा ही देंगे, हम तो तुम्हें बख्शिश करवा ही देंगे, हम तो तुम्हारी मग़फ़िरत करवा ही देंगे। क्या जरूरत है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि तुम नमाज पढ़ो? क्या जरूरत है तुम्हें मस्जिद में जाने की? क्या जरूरत है तुम्हें कुरान पढ़ने की? क्या जरूरत है तुम्हें दीन पढ़ने की? क्या जरूरत है तुम्हें दीन पर चलने की? तुम सिर्फ मुरीद हो जाओ और नजराना हमें देते रहो, हम तो तुम्हें बख्शवा ही देंगे। वही ख्याल था बगदाद वालों का। वो ये समझ रहे थे कि एक बुजुर्ग तो मिल गए हैं, कटोरा तो मिल गया है, जैसे ही पलटेंगे बगदाद गायब हो जाएगा, हिलाकू की फौज ढूंढती रह जाएगी, मिलेगी नहीं और हम सही सलामत रह जाएंगे। 3 मरतबा उनको मौका मिलता है, जब तीसरी मरतबा वो कटोरे को पलटने लगते हैं, अल्लाह का हुक्म आ जाता है। ये मौका 3 मरतबा दिया गया, लेकिन अब ये अपनी नाफरमानी से नहीं रुके, इसलिए अब इनको मौत के घाट उतारने का फैसला हो चुका है और तुम भी सर पे कफन बांध करके इनके साथ शहादत का जाम पीने के लिए तैयार हो जाओ। हम समझते हैं बड़े नेक हैं, हम बड़े पारसा हैं, हम अल्लाह ताला हमारा कोई रास्ता निकाल देगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, तुम बचे रहोगे। बगदाद उजड़ गया, वहां की बच्चे, वहां की औरतें और छोटे छोटे बच्चे तबाह हो गए। उन्होंने नहीं कहा था कि हमारे लिए अल्लाह रास्ता निकाल देगा। अभी ताजा फिलिस्तीन और गजा में लाखों लोग मर गए, छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे और बच्चियां और औरतें तबाह बर्बाद कर दी गई, लेकिन उन लोगों ने नहीं कहा कि हमारे लिए कोई रास्ता निकल आएगा। एक वक्त नमाज हमको नहीं पढ़ना है, अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता निकाल देगा। अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता निकाल देगा। दुनिया के खुराफात में हम डूबते रहेंगे, अल्लाह हमारे लिए रास्ता। ये सरकशी है, ये तमर्रुद है और ये बेहयाई है, ये बेगैरती है, ये ढिठाई है कि हम अल्लाह की रहमतों को उनके चैलेंज दे रहे हैं कि हम गुनाह में डूबे रहेंगे, फिर भी हमारे लिए अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। ऐसा नहीं, ये हकीकत में अल्लाह का अजाब है जो जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। अजाब है, ये कहर है अल्लाह का, और हम समझते हैं कि रास्ता निकल आएगा।
ये ख्वाब व ख्याल से अपने दिल दिमाग से ये निकाल दो। मरना तो है, चाहे इज्जत की मौत मरो या जिल्लत की मौत मरो या तबाही मौत मरो, उसके अलावा और कोई छुटकारा नहीं। एक आदमी था, उसका एक मुर्गा था। उसने सोचा कि इसको ज़बह करें, लेकिन उसके लिए सोचा कि कोई बहाना करें, किसी बहाने से इसको ज़बह करेंगे। तो उस आदमी ने उससे कहा कि सुबह सुबह तो तुम अजान देते हो, वो तुम्हें देने की इजाजत नहीं है, और अगर तुमने अजान दी तो तुम्हारी गर्दन खत्म, उसी दिन तुमको वो काट देंगे। उसने सोचा कि चलो कम से कम एक ऑप्शन तो है जान बचाने की। उसने कहा कि ठीक है, अजान तो हम नहीं देंगे, लेकिन अपने परों को फड़फड़ाएंगे। उसने कहा ठीक। तो अजान देना उसने बंद कर दिया, परों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद कहा कि अब ये भी करने के लिए फिर दूसरे कहा कि अब तुम परों को भी फड़फड़ा नहीं सकते हो, अगर परों को फड़फड़ाए तो फिर तुम्हें कत्ल कर देंगे। उसने कहा ठीक, अब वो भी नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ दिन और गुजरता है तो उस मुर्गे से उसने कहा तुम्हें अंडा देना पड़ेगा, वरना तुम्हें हम कत्ल कर देंगे। जब ये कहा तो फिर वो चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया और हंगामा खड़ा शुरू करना शुरू किया। उस आदमी ने कहा जब पहले दिन तुमको हमने मना किया था तुम तो नहीं रोके थे, दूसरे दिन जब मैंने किया तो उस दिन तो तुमने एहतजाज नहीं किया था, आज जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें अंडा देना पड़ेगा तो तुम्हें परेशानी क्या है? तुम मौत से डरते हो, तुम कत्ल होने से डरते हो, तुम कुर्बान होने से डरते हो। उसने कहा नहीं, मैं कुर्बानी से नहीं डर रहा हूं, मैं अपनी जान देने से नहीं डर रहा हूं, मैं अपने आप को फना करने से नहीं डर रहा हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि कल दुनिया क्या कहेगी कि एक अंडे की वजह से ये कत्ल हो गया। अगर मैं अजान की बुनियाद पर कत्ल होता तो मेरा नाम होता कि उसने अजान देने के लिए अजान से रोका था, उस बुनियाद पर इसको कत्ल कर दिया गया होता तो मैं शहादत का दर्जा पाता। लेकिन आज मैं अंडे की बुनियाद पर कत्ल हो रहा हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं, इसलिए मैं चीख रहा हूं, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं। आज हमारी हालत भी वही है, हमारी मस्जिदों को तबाह कर दिया गया, हम बूढ़े शैतान बनकर के खामोश रह गए, बाबरी मस्जिद को तबाह करके और उसको दूसरे के हवाले कर दिया गया, हुकूमत के सतह पर यह किया गया, हम खामोश रहे। हम इसको खुश करने के लिए हम ये कहते रहे हम संविधान का एहतराम करते हैं, हम उनकी इज्जत को करते हैं। हाँ ठीक है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन एहतजाज भी हमारा हक है, कम से कम हमें एहतजाज करना चाहिए था। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की गई, एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा की गई, दर्जनों मर्तबा की गई। हम बूढ़े शैतान बने रहे, हम अपने घरों में छुपे रहे, हम अपने कारोबार में लगे रहे, हम अपनी नौकरियों में लगे रहे, हम अपने मामलात में लगे रहे। रसूलुल्लाह की शान में तौहीन हुई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मस्जिदों को तबाह कर दिया गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी कितनी मस्जिदें ऐसी है न जिसमें अजान हो रही है न इसमें नमाज हो रही है, उसको ताला लगा दिया गया है, हमारे शरीयत पर हमला किया गया, तीन इंकलाब का मसला खड़ा हुआ, उस पर भी हम खामोश रहे। जब मस्जिदें तबाह हुई हम खामोश थे, जब रसूलुल्लाह की शान में तौहीन की गई हम खामोश थे, और जब मस्जिदों और हमारी शरीयत से खिलवाड़ किया गया तब हम खामोश थे। इन खामोशी रहने के बाद अब जब हमारे माल की बारी आ रही है, जब हमारे जान की बारी आ रही है, हमारी इज्जत की बारी आ रही है, हमारी जमीन की बारी आ रही है, हमारी जायदाद की जब बारी आ रही है तो हम चीखते हुए खड़े होंगे। अब हम कहेंगे अब मरेंगे चाहे मारेंगे, अपना हक लेकर के रहेंगे, अपनी इज्जत को बचा करके रहेंगे, अपने माल को बचा करके रहेंगे। अब हम जिहाद करेंगे। ये पागलपन के सिवा कुछ नहीं। जब दीन पर हमला हो रहा था तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जब शरीयत पर हमला हो रहा था तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब तुम्हारे जान की बारी आती है, तुम्हारे माल की बारी आती है, जब तुम्हारी जायदाद की बारी आती है तो तुम लड़ने के लिए खड़े कौन से तुम लेकर के खड़े होंगे? कहां पर जाकर के तुम सुरखुरू होगे? अल्लाह और उसके रसूल के बारगाह से तो तुम दूर हो चुके हो, मस्जिदें तुम्हें दिखाई नहीं देती है, नमाज के औकात में तुम घूमते रह जाते हो। कहां जाकर के पनाह लोगे? कल गर्मों से मैशर तुम्हें खड़ा किया जाएगा और अल्लाह के सामने तुम्हें जवाबदेही होगी, तुमसे पूछा जाएगा इतनी जिंदगी हमने दी थी, तुमने करके क्या आया? उस वक्त हमारा क्या जवाब होगा? इसलिए जो कुछ भी हमें करना है, कम से कम जब मौत और कयामतें हमारे सर पर खड़ी है, अब तो कम से कम आखिरी वक्त में मुसलमान हो जाओ। हो सकता है अल्लाह ताला फजल फरमा दे, और अगर अल्लाह का फजल इस दुनिया में ना हो तो कम से कम ईमान के साथ मरने की तौफीक तो होगी। लेकिन अगर ये भी नहीं किए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि अय आदमी, अय देहाती, अय नादान, तुम काबा हरगिज़ नहीं पहुंच सकते हो, इसलिए कि जो रास्ता तुमने इख्तियार किए हो ये काबा और मक्का नहीं बल्कि ये तुर्किस्तान जाता है।
जिंदगी भर गुनाहों में मुलविस रहो, अल्लाह की नाफरमानी में रहो, नमाज छोड़ते रहो, नमाज को तर्क करते रहो, मस्जिदों को वीरान करते रहो, मस्जिद की तरफ रुख करने की तौफीक न मिले, अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारते रहो और समझते हो कि हम शहादत की मौत मिलेगी, ईमान पर खात्मा होगा, जन्नत में हम जाएंगे, ये ख्वाब ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मौत का वक्त करीब है, कयामत करीब है और एक दूसरी कयामत हमारे ऊपर टूट पड़ी है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम कम से कम अपने रब को राजी करें, अपने दीन को सीखें, कुरान को पढ़ें। इसी में हमारे लिए भलाई है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह